हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਚੈप्टर। ठीक है 12th ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈप्टर ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੈप्टर है। ठीक है ना, अपनी पूरी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੈप्टर ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਮਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ठीक है पेपर 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਬਈ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ठीक है ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਚੈप्टर है। ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਚੈप्टर है। ठीक है ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬਣਦੇ ਕੀ ਨੇ। ठीक है ਮੋਨੋਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक कुछ टर्म्स ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਮਰ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਮਰ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀ, ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਮਰ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟਸ। ਮਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਦੋ ਆਪ ਪਾਰਟਸ। मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇंगे, ठीक है ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ देंगे, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ठीक है ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ठीक है ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇंगे ਪੋਲੀਥੀਨ। ठीक है ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ। ठीक है ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ठीक है ये पॉलीथीन बनता किमें है, ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ठीक है CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ CH2। ठीक है ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ। ठीक है ਜੋੜਦੇ ਕਿਸ ਥਰੂ ਹੋਗੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਥਰੂ। ठीक है ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ CH2N। मतलब ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਜੋੜਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਇਥੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਨੋਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਮਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰ। ਤੇ ਮੋਨੋਮਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨੋਮਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ठीक है पॉलीमराइजेशन। ठीक है भाई उरे n काफी लार्ज नंबर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है ना n मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक है ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ CH2 ਯੂਨਿਟ। ठीक है ਇਥਾਈਲਿਨ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ठीक है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है इस तरह काफी बार जुड़ चुके हैं। ठीक है इधर भी काफी बार जुड़ चुके हैं। ठीक है इसलिए अपने इसमें n शो करता n मतलब काफी बार जुड़ चुके हैं। ठीक है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਲਾਰਜ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ठीक है भाई वर्ड मैक्रो लिखा है MACRO। ठीक है माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है इसलिए पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰਜ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ठीक है ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਈ ठीक है 10 रेज़ टू पावर 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 रेज़ टू पावर 7 U तक। ठीक है यूनिफाइड मास तक। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 6U ਹੁੰਦਾ 12U ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14U ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ठीक है CH2 डबल बॉन्डेड CH2 इथीन ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक है इथीन ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ठीक है 12 12 24 24 and 4 28। ਇੱਕ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28U। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਥੀਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਨੋਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੋਨੋਮਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ठीक है मोनोमर तो जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर बनता है उस प्रोसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है हम पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंट कैटेगरीज ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है ਉਹ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है पॉलीमर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਮੋਨੋਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇंगे, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾइन पढ़ो, ठीक है। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट लिख लो, इस लाइन को कट दो, ठीक है। और लिखो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, ठीक है भाई। मैं PDF स्टाम्प लैके आना ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਮੋਨੋਮਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰਸ ਫਰੋਮ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੋਨੋਮਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੀਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਥੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੀਨ ਸੀ, इथीन तो की बन गया अपने को पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इथीन तो की बन गया अपने को पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इस प्रोसैस को आप बोल देंगे पॉलीमराइजेशन बोल देंगे, ठीक है। नैक्सट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है काफी ज्यादा, ठीक है। नायलॉन 66, नायलॉन 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरे चैप्टर से घट्टो घट आप इसमें 10 बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो याद होनी चाहिए नायलॉन 66 अपने को किस तरह बनता है, ठीक है। नायलॉन 66 अपने को की बनता है, सब तो पहले अपन एक यूनिट लेनी है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ठीक है भाई, याद रखने पैणगे हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन डायमीन के नाल अपन की ले लेना है एडिपिक एसिड, इस नाल अपन की ले लेना है एडिपिक एसिड ले लेना है। तो अपने को फाइनली प्रोडक्ट की बनता है अपने को नायलॉन 66, नायलॉन 66, ठीक है। एक वही नायलॉन 66 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਇਲੋਨ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਇਲੋਨ 6 ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਇਲੋਨ 66 ਸਿੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਕਸਾ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਅਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਅਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, 2 NH2 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਕਸਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਕਸਾ ਮਤਲਬ 6, ठीक है। मिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप, ठीक है। मतलब CH2 कितने होंगे अपने को 6 होंगे, ठीक है। 2 NH2 ग्रुप ने, ठीक है ना, क्लियर हैगा। एडिपिक एसिड की होंगे, एसिड की होंगे अपने को COOH तो बन के मिलते हैं, इस भी 2 COH होंगे, COOH, ठीक है। इस अंदर 4 कार्बन की मिथाइलिन होंगी है भाई, ठीक है। 4 कार्बन की मिथाइलिन और एक हो COH, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। ये की हो गया अपने को हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ये की हो गया अपने को एडिपिक एसिड, ठीक है। ये आपस च मिलके, ठीक है, की बनाएंगे अपने को नायलॉन 66 बनाएंगे, ठीक है। किस तरह बनाने ने, ठीक है, ध्यान नाल देखो। इस प्रोसैस दे अंदर अपने को एक वाटर मॉलिक्यूल की होंदा एलिमिनेट होंदा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल की होंदा अपने को एलिमिनेट होंदा, जिस तरह अपने को एक की है NH2 ग्रुप है, ठीक है ना। एक की है COOH ग्रुप है, ठीक है ना। यह की है अपने को अमीन ग्रुप, ठीक है। एक ही हो गया अपने को एसिड ग्रुप। अमीन तो अपने को की जाऊगा H जाऊगा, तो इस तो अपने को की जाऊगा OH जाऊगा, ठीक है। ता अपने को बनूगा फाइनल पॉलीमर बनेगा, ठीक है। मतलब जो अपने पॉलीमर शो करना है, ठीक है, N के नाल 2H सी, हुण की होगा अपने को 1 H होगा, ठीक है। फिर बाकी सारा मॉलिक्यूल इस तरह, ठीक है, CH2 एज इट इज, ठीक है। फिर N के नाल 2H सी पहला, हुण 1 H, ठीक है। और C डबल बॉन्डेड O, ठीक है। OH गायब कर देना भाई, ठीक है। CH2 4, ठीक है, C डबल बॉन्डेड O, ठीक है। यही जो कंपाउंड बन के आया इसनों आपां की बोल देंगे नायलॉन 66 बोल देने, ठीक है। इस कंपाउंड को आपां की बोल देंगे नायलॉन 66 बोल देंगे, ठीक है। आई होप तुहानूं क्लीयर होगा, ठीक है। अपने सब तो पहले की लेना है हेक्सा मिथाइल डायमीन नाल किस दे नाल ट्रीट करना है, डायअमीन दे नाल। इस प्रोसैस के अंदर अपने को वाटर मॉलिक्यूल की होंदा एलिमिनेट होंदा है, इसलिए आपां वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेट होगा, एक अपने को H होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, ठीक है। H तो OH मिलकर आपस की बना देंगे अपने को H2O। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੀਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ NH2 ਉਹ ਕੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦਾ H, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ COH ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦਾ OH, ਠੀਕ ਹੈ। H ਤੇ OH ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਇਲੋਨ 66 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਇੱਕ ਨਾਇਲੋਨ 66। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਇਲੋਨ 66 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ठीक है। 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ इथीन तो अपने पॉलीथीन बनाया। ठीक है, सैकेंड एग्जांपल के अंदर अपने हेक्सामिथाइलिन डाइमीन तो एडिपिक एसिड की प्रेजेंस ठीक है पॉलीमराइज करके की बनाता नायलॉन 6,6 बनाता। ठीक है भाई, रटने नहीं है, हम डायरैक्ट बनाने चाहिए ने किस तरह आप मोनोमर तो की बनाने पॉलीमर बनाने हुण आप अगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगे आप जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि क्लासीफिकेशन। ठीक है, क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, अगे आप डिस्कस करना है क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, क्लासीफिकेशन आप डिस्कस करेंगे, एक दो टाइप्स आप डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासीफिकेशन का की मतलब है। ठीक है, क्लासीफिकेशन ठीक है पॉलीमर्स कई प्रकार में क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस तरह अपन पॉलीमर मिलते कितों ने, ठीक है ना, मतलब सोर्स ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, सोर्स ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स अपने मिलते कितों ने उसके बेसिस के ऊपर आप इसनूं ठीक है कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उस तो इलावा आप किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरह दिख रहे ने, ठीक है, स्ट्रक्चर दे बेस ते, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर दे बेस ते आपां नूं किस तरह दिख रहे ने उसनूं आपां पॉलीमराइज नूं कैटेगरी करांगे। ठीक है, तीजी टाइप आंदी अपने कोल, ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन। ठीक है, किस तरह अपने कोल पॉलीमर बनदे ने, ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन, मोड ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन। ठीक है, अपने कोल बनदे किस तरह ने पॉलीमर्स, इसके बेसिस के ऊपर आप कैटेगराइज करते हैं इसनूं। ठीक है, एक होर कैटेगरी होंदी अपने कोल, ठीक है, जिहड़ी सब तो इंपोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब जो आप मोनोमर यूनिट्स नूं आपस जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हां दे अंदर किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उन्हां दे बेस ते आप इसनूं क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, चार कैटेगरीज के अंदर अपने की पढ़ना है पॉलीमर्स नूं पढ़ना है। ठीक है, सोर्स के बेसिस ते बई हुण अपने कोल सोर्स, ठीक है, पॉलीमर अपने नेचर च भी मिलते हैं तो आप की बोल सकते हैं नैचुरल पॉलीमर इस दे अंदर। ठीक है, इस दे अंदर आप की बोल सकते हैं अपन नैचुरल पॉलीमर, जां इसनूं आप बोल सकते हैं सैमी सिंथैटिक पॉलीमर। ठीक है, सैमी सिंथैटिक पॉलीमर। सैमी सिंथैटिक की मतलब क्या, नैचुरल पॉलीमर तो वो पॉलीमर होंगे जो नेचर से पाए जाते हैं। ठीक है, जो अपन नेचर तो मिलते हैं, ठीक है, कुदरती मिलते हैं। ठीक है, सैमी सिंथैटिक के अंदर की होंगे ने जिहड़े अपन थोड़े नेचर तो मिलते हैं, आप थोड़ा उस चेंज करके उसनूं की बना देना है सैमी सिंथैटिक बना देने। ते तीजे होंगे अपने कोल टोटली सिंथैटिक। ठीक है, सिंथैटिक का की मतलब होंगे जिहड़े आप टोटली, ठीक है, नेचर की हेल्प बिना ले, ठीक है, आप टोटली लैबोरेटरी के अंदर बनाने उन्होंने आप की बोल देंगे सिंथैटिक पॉलीमर। ठीक है, यही क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, किस तरह का अपने कोल सोर्स है। ठीक है, उस तो बाद आप डिस्कस कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस से आप किस तरह इसको क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस से, ठीक है, इस अपने अंदर लीनियर पॉलीमर। ठीक है, एक होंगे अपने को लीनियर पॉलीमर, एक होंगे अपने को ब्रांच्ड पॉलीमर, एक होंगे अपने को ब्रांच्ड पॉलीमर, ते एक होंगे अपने को तीजी कैटेगरी होंगी नैटवर्क पॉलीमर बोलते हैं या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, इस अंदर तीजी कैटेगरी की पढ़ांगे आप क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देना है, ठीक है, 3D पॉलीमर्स बोल दो, ਜਾਂ इसमें नेटवर्क पॉलीमर बोल दो। ठीक है, नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है ना, लीनियर पॉलीमर की होंगे, ब्रांच पॉलीमर की होंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर की होंगे, वो भी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीजा मैथड होंगे अपने को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन। ठीक है भाई, पॉलीमर बनते हैं जो डायरैक्ट एडिशन होंगी है तो उसमें आप बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स जिस तरह अपने पॉलीथीन पढ़िया सीगा। ठीक है, उस की हुई सी CH2 CH2 आपस की हुई ऐड हुई सी। ठीक है, उस तरह पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ एडिशन पॉलीमर्स। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪॉलीमर्स। ठीक है, दूसरे होंगे अपने को कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स केड़े होंगे ने, ठीक है, जो दो यूनिट्स आपस में जुड़न, ठीक है, तो कोई छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O या NH3, ठीक है, की कर देन लिबरेट कर देना। मतलब दो यूनिट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ जोड़िया तो कोई छोटी मॉलिक्यूल की हो गया निकल गया। ठीक है, दोनों ने अपन एग्जांपल डिस्कस की थी जो अपन स्टार्टिंग क्लास की थी, तो अपन डिस्कस किया नायलॉन 6,6 जो अपने नायलॉन 6,6 बनाया ਸੀ अपने वाटर मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एलिमिनेट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मतलब नायलॉन 6,6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कंडेंसेशन पॉलीमर ਤੇ एडिशन पॉलीमर ਦੀ एग्जांपल ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ अपने पॉलीथीन। ठीक है, इसमें ਆਪਾਂ दोबारा फिर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस, भाई मॉलिकुलर फोर्सेस ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚ, ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ, ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये चार चीज़ें अपन डिस्कस करनी है, ठीक है। ये चार क्लासिफिकेशन है भाई, ठीक है। सोर्स के बेसिस से अपन दस्या पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤੇ, ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇंगे ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस से अपने जी सीधा देखो जो मोनोमर यूनिट जुड़ते हैं, ठीक है, सीधे 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 इस तरह जुड़ गई तो उसमें आप बोलेंगे लीनियर, ठीक है जी। अपने को इस तरह ब्रांचों की फॉर्म च जुड़ गई, ठीक है, इन्हों की आपस की होगी ब्रांचिंग होगी तो उसमें आप बोलेंगे ब्रांच पॉलीमर। ये सब आप डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप अज कि क्लासिफिकेशन पढ़ांगे, ठीक है, सोर्स, ठीक है, सोर्स के बेसिस से पढ़ लांगे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पढ़ांगे तो मोड ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन के बेसिस से पढ़ लांगे, ठीक है। बाकी आप नैक्सट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सब तो पहले आप सोर्स के बेसिस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप इनू इंडिविजुअली पढ़ देंगे, ठीक है। आप देख लेना स्लाइड्स के अंदर अपने को की लिखा होगा, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ भाई आ देखो हम अपने क्लास ऑन द बेसिस सोर्स देखा थी, ठीक है। सोर्स के बेसिस से अपने तीन तरह पॉलीमर पढ़े सी। एक होंगे अपने को नैचुरल पॉलीमर ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ देखो आप नैचुरल पॉलीमर बारे पढ़ते पहला, ठीक है। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एनिमल की वही कुदरती मिलते हैं ते जेडे पॉलीमर्स प्लांट्स एनिमल्स तो मिलते हैं, ठीक है, उन्होंने आप की बोल देना, ठीक है ना, नैचुरल पॉलीमर मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल प्रोटीन, ठीक है, जिस तरह आप बोल देना एग्स के अंदर की होंगे काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। एग की होंगे अपन एक एनिमल तो ही मिलता है, ठीक है। प्रोटीन्स की होंगे अपने को, ठीक है, जिस तरह जो अपना एग होंगे उसमें काफी हाई अमाउंट अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होंगे अपने को नैचुरल सोर्स तो मिलते हैं, ठीक है ना। सैलूलोज हो गया भाई, स्टार्च हो गया, रेजिन्स हो गई, ठीक है, रबड़ हो गए, सारे की ने अपने को नैचुरल सोर्स तो मिलते हैं, ठीक है। रबड़ का पेड़ होंगे जिन्होंने आप लैटिक्स बोल देंगे, ठीक है। रबड़ का एक पेड़ होंगे, ठीक है, जिसमें आप लैटिक्स बोलते हैं। सैलूलोज, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च अपना जो आलू होंगे उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। सारे की ने नैचुरल पॉलीमर ने। जो आप गल करते सैमी सिंथैटिक की, सैमी सिंथैटिक ही होंगे अपने को नैचुरल तो ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, जिस तरह अपने को सैलूलोज की और नैचुरल है, बट जो अपने सैलूलोज का डेरिवेटिव मतलब सैलूलोज थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है, सैलूलोज एसीटेट बनाया जिसमें आप रेओन बोलते हैं, ठीक है, वो भी हो जाता अपने को सैमी सिंथैटिक पॉलीमर हो जाता है। उस तो अलावा सैलूलोज नाइट्रेट, ठीक है, सारे होंगे अपने को सैमी सिंथैटिक पॉलीमर्स होंगे, ठीक है। उस तो बाद होंगे सिंथैटिक पॉलीमर्स। सिंथैटिक पॉलीमर्स किहड़े होंगे ने, जो टोटली मैन मेड होंगे, ठीक है ना, जो आप लैबोरेटरी के अंदर बनाने हैं, जिस तरह पॉलीथीन जो प्लास्टिक बैग्स होंगे आप यूज करते हैं, पॉलीथीन्स वो की होंगे अपने को फैक्ट्रियां च बनते हैं, ठीक है, उन्होंने आप बोल देंगे जिस तरह पॉलीथीन हो गया, सिंथैटिक फाइबर्स हो गया, जिस तरह नायलॉन 66 अपने पढ़िया सी ना, नायलॉन 66, ठीक है। ये सब की मिलते हैं अपन बाजार तो मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये आप सिंथैटिक होंगे मैन मेड होंगे, ठीक है। उस तो अलावा बूना एसिड, ठीक है, बूना एसिड एक टाइप ऑफ रबड़ होंगी है, ठीक है ना। बूना एसिड अपने को टाइप ऑफ रबड़ होंगी है, ठीक है। जो आप लास्ट के अंदर रबड़ पढ़ांगे, ठीक है, उस आप पढ़ांगे बूना एसिड होंगे। उस तो अलावा मैनमोड, ये सारे की मैनमोड पॉलीमर्स ने इन्होंने एक्सटेंसिव यूज मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक, काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर इन्हों की करते हैं यूज कर देंगे, ठीक है। हम स्ट्रक्चर के बेसिस से पढ़ना है, ठीक है। 3 टाइप्स होंगे अपने स्ट्रक्चर के बेसिस से, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस से अपने किहड़े डिस्कस किए थे, आ देखो भाई लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर ते आप तीजे पढ़े सीगे चेन पॉली आप 3D पॉलीमर्स, ठीक है। सब तो पहले आप पढ़ देंगे लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। जो आप लीनियर पॉलीमर्स के अंदर, ठीक, की होंगे जो अपने को जो एडिशन होंगे, ठीक है, इस तरह लीनियर फॉर्म के अंदर होंगी रहे, ठीक है, इस तरह लीनियर फॉर्म के अंदर, ठीक है, इस तरह लीनियर फॉर्म के अंदर मतलब इस तरह के अपन चेन्स मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ लीनियर के अंदर, ठीक है, फिर लीनियर के अंदर, ठीक है, लीनियर आपस में होंगे मोनोमर यूनिट जुड़ते रहते हैं। इस तरह के पॉलीमर्स को आप बोलेंगे लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स, ठीक है, स्ट्रेट चेन्स होंगे ने,
ठीक है, इन्होंने ਆਪਾਂ बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, HDP। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ HDP, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਪੋਲੀਥੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਵਿਨਾइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ने काफी अमाउंट यूज करते हैं आजकल। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की PVC। ठीक है, PVC तो सबने सुनिया होगा। ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल होंगे ने लीनियर पॉलीमर की। ठीक है, दूजे नंबर ते आंदे ने ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, ब्रांच पॉलीमर की होंगे ने जिस तरह अपने को एक लीनियर यूनिट होगी, दूसरी लीनियर यूनिट होगी, इन्हां दे अंदर आपस च होगी कोई ब्रांचिंग होगी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल की है जो आप बनाया। ठीक है, CH2 ठीक है, इस तरह सपोज कोई एग्जांपल ही। ठीक है, आपस लीनियर बन रहे थे, एक दूजी यूनिट लीनियर थी CH2 ये भी लीनियर सी। ठीक है, आपस के अंदर की हो गया, इन्हां दे अंदर कोई बॉन्ड, इन्हां दे अंदर कोई बॉन्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, उसनूं आपां बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, जे अपने को लीनियर पॉलीमर की सीगे हाई डेंसिटी सीगे तां इह की हुंदे ने अपने को लो डेंसिटी पॉलीथीन हुंदे ने। ठीक है, अपने को इह की हुंदे ने लो डेंसिटी पॉलीथीन हुंदे ने। ठीक है, उस तो इलावा तीजी कैटेगरी जिहड़ी हुंदी अपने को क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, क्रॉस लिंक का की मतलब हुंदा हैगा। ठीक है, ध्यान नाल समझो, जिस तरह अपने को ये पहली, ठीक है, लीनियर चेन। ठीक है, ये अपने को सपोज दूसरी लीनियर चेन है, आह अपने को तीसरी लीनियर चेन। ठीक है, जो अपने को ब्रांच पढ़े सीगे, ब्रांच किसी दो लेयरां दे विच सीगी, बट इस दे अंदर की है पहली ते तीजी दे अंदर भी की है अपने को ब्रांचिंग हैगी। ठीक है, इस तरह के पॉलीमर्स नूं आपां की बोल देंगे क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स। ठीक है, इस लिखो की लिखा है, दीज आर यूजली फाउंड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है, ते किस तरह बनते हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अंदर की होंगे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस एग्जांपल ध्यान रखियो भाई, इसका एक एग्जांपल होंगे बेकेलाइट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होंगे मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन कट गया, आप लिख देना दोबारा मेलामाइन। ठीक है ना, इस एग्जांपल जरूर याद रखियो भाई क्रॉस लिंक दे। ठीक है, अपने तीन तरह के पॉलीमर्स डिस्कस किए हुण। ठीक है, एक होंगे अपने को लीनियर पॉलीमर, एक होंगे अपने को ब्रांच पॉलीमर, ते एक अपने होंगे ने क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड। ठीक है ना, इस लीनियर पॉलीमर के अंदर आप किहड़े एग्जांपल डिस्कस की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, ब्रांच पॉलीमर के अंदर लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, क्रॉस लिंक के अंदर अपने किहड़ी एग्जांपल डिस्कस की भाई, क्रॉस लिंक के अंदर बेकेलाइट ते मेलामाइन, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, लीनियर के अंदर अपने एक PVC भी देखी थी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, जो आजकल यूज करते हैं ना PVC दियां, मतलब सीलिंग कर देंगे। ठीक है, दीवारों। ठीक है ना, PVC दी आजकल डेकोरेशन के तौर पर यूज होंगी है। ठीक है ना, ये वही है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, हम अपने दो तरह की क्लासीफिकेशन डिस्कस कर ली। ठीक है, जो अपने क्लासीफिकेशन स्टार्ट की थी, देखो पिछली स्लाइड के अंदर, हाँ देखो अपने क्लासीफिकेशन पढ़ी सी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, अपने को पॉलीमर बनते कितने ने। ठीक है, दूसरी क्लासीफिकेशन जी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का उसके बेसिस पे आप पॉलीमर्स को किस तरह पढ़ देंगे। ठीक है, तीसरी होंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर ठीक है दो तरह की होंगी अपने को, एक होंगे एडिशन पॉलीमर्स, दूसरे होंगे अपने को कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, इन्हों आप डिस्कस करते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स की होंगे ने, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की होंगे ने, ते बाकी का जो पार्ट है वो आप नैक्सट वीडियो के अंदर कवर करांगे डिटेल के अंदर। ठीक है, आप दो हिस्से अपने पढ़ लिए चैप्टर अंदर। ठीक है, सोर्स के बेसिस से, स्ट्रक्चर के बेसिस से, हुण आप पढ़ांगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ਅਸੀਂ चले आप पहला खुद पढ़ देंगे। ठीक है, फिर आप स्लाइड्स देखेंगे। ठीक है, पहला आप एडिशन पॉलीमर्स डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, पहला आप डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आप डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स के अंदर की होंगे। ठीक है, एडिशन पॉलीमर किस तरह के मोनोमर यूनिट शो करनगे। ठीक है, जिस तरह जिन्ना के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिन्ना मोनोमर यूनिट्स अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अपने को शो करते हैं एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स अपने को दो तरह के होंगे, एक होंगे ने अपने को होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स, एक होंगे ने अपने को कोपॉलीमर्स। ठीक है, की होंगे ने होमोपॉलीमर्स, की होंगे ने अपने को कोपॉलीमर्स, वो आप डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पहली गल एडिशन पॉलीमर्स की हो सकता है। ठीक है, एक तो इलावा ठीक है दो तरह यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एक जिवें आपां पॉलीथीन के केस की सीगा अपने को। ठीक है, CH2 ਲਈ ਸੀ अपने एक तरह यूनिट सीगी। ठीक है, इसनूं काफ़ी बार अपने रिपीट किया। ठीक है, तो अपने को फाइनली प्रोडक्ट की बन गया सी अपने को CH2N। ठीक है, पॉलीथीन बन गया सीगा। ठीक है, इस जिहड़ी रिपीटिंग यूनिट सीगी
ठीक है, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ CH2 ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो होमोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे अपने को, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज प्रेजेंट, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज प्रेजेंट, मोनोमर यूनिट इज प्रेजेंट। ठीक है, कोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे भाई, ठीक है, पहली गल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जिन्हें एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करनी है उन्होंने अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए है। ठीक है, कोपॉलीमर्स की होंगे भाई दसो। ठीक है, जो अपने को दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट हो, ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिखो बूना एस। ठीक है, बूना एस, ठीक है, बूना एस किस तरह बनता है भाई, अपने को 1,3 ब्यूटाडाइन लेना अपने, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, घबराओ ना, ठीक है, की होंगे आप दसांगे। ठीक है, नाल आप लेना स्टायरीन, ठीक है, नाल आप की लेना स्टायरीन। ठीक है, आपस च कंबाइन होकर की बना देंगे बूना एस बना देंगे। ठीक है, आपस च मिलकर की बना देंगे बूना एस बना देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब हो गया अपने को, ठीक है, ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन होंगे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, यही हो गया अपने को 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है ना, हाँ देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। ठीक है, 1 ਤੇ 3 नंबर कार्बन ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आप लिखना 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, स्टायरीन की ਹੁੰਦਾ, स्टायरीन ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈ। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्डेड CH2, इस स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟਾਇਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ, ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਾਇਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ N ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ठीक है, पहला डबल बॉन्ड देखो 1 ਤੇ 2 नंबर कार्बन ਚ ਸੀਗਾ, 3 ਤੇ 4 नंबर कार्बन ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਜੁੜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, CH ਯੂਨਿਟ, ठीक है, डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, एज इट इज है, सॉरी डबल बॉन्ड की हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाले कार्बन के नाल की अपने को, ठीक है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ए वाले कार्बन के नाल की अपने को बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, जिहड़ा ये बनया अपने को, ठीक है, इसी कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਬੂਨਾ ਐਸ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ठीक है, ਬੂਨਾ ਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਬੜ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਬੜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀਆਂ। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੂਨਾ ਐਸ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਬੜ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1,3 ब्यूटाडाइन लेना है, नाल अपन स्टायरीन की यूनिट लेनी है। ठीक है, उस तो आपस च मिलकर बनता है बूना एस बनता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल अपन ध्यान रखने ने किस दियां, एडिशन पॉलीमर्स दियां। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स भी अपने को दो तरह के होंगे ने, एक होंगे ने अपने को होमोपॉलीमर्स, एक होंगे ने अपने को कोपॉलीमर्स। ठीक है, होमोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे, सिर्फ एक टाइप की होंगी अपने को मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगी है। इसकी एग्जाम्पल लिख लो पॉलीथीन। ठीक है, ठीक है, कोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे दो डिफरेंट कैटेगरीज होंगे ने, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगे ने, दो या दो तो ज्यादा भी। ठीक है, वो अपने केस नहीं पढ़ना, बट अपने दो डिफरेंट काइंड्स होंगे ने। इसकी एग्जांपल लिख लो बूना एस। ठीक है, इसकी एग्जांपल की हो जाएगी अपने को बूना एस। ठीक है ना, उस तो बाद अपने को दूसरी कैटेगरी होंगी है। ठीक है, अपने बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अपन दो तरह के पॉलीमर्स पढ़ने, एक होंगे ने एडिशन पॉलीमर, दूसरे की होंगे ने अपने को कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरे अंदर अपने को कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर की होंदा है। ठीक, कंडेंसेशन का मतलब की होंदा बेसिकली, जो आप दो मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ आपस ਚ जोड़ते हैं। ठीक है ना, आप दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो कोई छोटा मॉलिक्यूल जो लिबरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, उस तरह के पॉलीमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर की होए बई अपन कोल, when two monomer units connect with each other, connect to each other with the removal of small molecule
with the removal of small molecule like H2O, ठीक है, NH3, HCl एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब दो यूनिट आपस में जुड़नगियां, ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਊਗਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾਗੇ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਇਲੋਨ 6 ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਇਲੋਨ 6 ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾਇਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਜ਼ਾ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਇਲੋਨ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਜ਼ਾ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CH2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ, NH2। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਪਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, COOH। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, उरे COH। ठीक है, तो फाइनली थे नाइट्रोजन को की मिलता है अपन हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो COH ग्रुप तो अपने को OH लिबरेट होंगे, तो फाइनली की बन जाता अपने को वाटर मॉलिक्यूल। तो किस तरह पॉलीमर नजर आता है, NH, ठीक है, CH2 6 NH C डबल बॉन्डेड O CH2 4 C डबल बॉन्डेड O। ठीक है, इस तरह पॉलीमर अपन की नजर आता है। ठीक है, इसमें आप की बोल देंगे नायलॉन 6। ठीक है ना, तो थोड़ी थ्योरी पढ़ लेने। ठीक है, इसमें अपना तीजी कैटेगरी भी कवर करती भी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस दो पॉलीमर पढ़ते हैं, एक होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर ते एक होंगे अपने को एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, आप स्लाइड्स भी पढ़ लेने एक बार। हाँ देखो, एडिशन पॉलीमर्स के अंदर की लिखा है भाई। ठीक है, थ्योरी तो बहुत ज्यादा लिखी हुई है अपने को। ठीक है, द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग, सॉरी पहले आप एडिशन पढ़ना। हाँ, एडिशन पॉलीमर्स की होंगे, एडिशन पॉलीमर्स आर, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर यूनिट। ठीक है ना, जिस तरह जिन्होंने अंदर की हो गए एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीमर्स। ठीक है, जिस तरह अपने पहले एग्जांपल डिस्कस की इथीन तो की बने पॉलीथीन। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लिखी इस बूना S हो गया, बूना N हो गया। ठीक है, सारी एग्जांपल होंगे ने किस दियां, एडिशन पॉलीमर्स दियां। ठीक है ना, और भाई शायद स्लाइड कट चुकी है, ठीक है, बट अपने एग्जांपल पीछे देख चुके हैं इसकी। ठीक है ना, जी अपने एग्जांपल डिस्कस की बूना S की। ठीक है, वो की अपने को एडिशन पॉलीमर ही होंगे। ठीक है ना, एक होंगे अपने को एडिशन भी 2 तरह के होंगे पॉलीमर। ठीक है, एडिशन भी अपने को 2 तरह के होंगे। ठीक है, एक होंगे होमोपॉलीमर्स, एक होंगे अपने को कोपॉलीमर्स। ठीक है, होमोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे अपने को एक ही रिपीटिंग यूनिट होंगी है। कोपॉलीमर्स के अंदर की होंगे अपने को एक तो ज्यादा की होंगे रिपीटिंग यूनिट्स होंगे ने। ठीक है, अगे देखते हैं आप कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर की होंगे अपने को, ठीक है, 2 यूनिट आपस में कंबाइन कर दिए ने। ठीक है, ठीक है, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, होंगे इस नाल। ठीक है, इस एग्जांपल किहड़े सी, नायलॉन 6 ठीक है, जिहड़ी आपां डिस्कस कीती है। उस तो बाद नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6 ते नायलॉन 6 दो डिफरेंट होंगे ने। ठीक है, उस तो अलावा टेरिलीन। ठीक है ना, टेरिलीन एक तरह का मटीरियल होंगे। ठीक है, कॉटन मटीरियल होंगे। ठीक है, कपड़े वाला मटीरियल होंगे। ठीक है, टेरिलीन का कपड़ा आप यूज कर देंगे। ठीक है, उस तो अलावा ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अपने शो की नायलॉन 6 की एक एग्जांपल। ठीक है ना, देखो इस कंपाउंड इस रिएक्शन अंदर वाटर मॉलिक्यूल की हो गया, निकल गया, इसलिए इस तरह रिएक्शन को अपन की बोलते हैं, इस तरह पॉलीमर्स को की बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, देखें की है अपने को। ठीक है, आगे आ गया अपने को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, जिहड़ा कि ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ। ठीक है, उस तो आप इस लैक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अपन डिस्कस किया सब तो पहले पॉलीमर्स की होंगे ने। ठीक है, सब तो पहले अपन लैक्चर स्टार्ट किया तो देखा पॉलीमर्स की होंगे ने। ठीक है, फिर पॉलीमर्स तो बाद अपन डिस्कस किया कुछ एग्जांपल इसके। ठीक है, पॉलीमर्स के अंदर आप की देखा मोनोमर यूनिट की होंगी है अपने को, मोनोमर यूनिट की होंगी है। ठीक है, तो अपन डिस्कस किया पॉलीमराइजेशन की होंगे, पॉलीमराइजेशन की होंगी है। ठीक है, उस तो बाद अपन डिफरेंट कैटेगरीज पढ़िया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, वो सारी कैटेगरीज तुसी एक चंगी तरह रिवाइज कर लियो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फ्रॉम द, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है, उसके बेसिस पे किस तरह आप इलास्टोमर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक वो की होंगे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उदों तक तुसी रिवाइज करने चंगी तरह। ठीक है, इस 4 मार्क्स भी पूरे लेना तो गारंटी होनी चाहिए है। ठीक है, ये सब तो ईजी चैप्टर है,
ਇਸ ਦਿਨ ਤਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਕਨਫਰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਲਾਈਡਸ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡਸ ਮੈंने ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग दिस वीडियो।